Hello guys, I'm Dr. Abhishek back with another video. So this is Side Dental Vlogs, and if you're for the first time you have come to this channel, I make videos on dentistry. So today's video will be about basically what we need to follow protocols after this pandemic is over, and how we are going to survive through all this what has happened to us, particularly as dentists. We are not able to go to the clinics, we are not able to treat patient, and there is a fear of this virus in our minds because we are the persons who are most prone to this kind of infection, because we are mainly dealing with aerosols in our clinic, aerosols from the scaler, aerosols from the aerator, and whenever you are using a 3-way syringe, कभी-कभी saliva तो हमारे मुंह पे आ जाता है. मतलब this is the real fact of dentistry, and how much you are controlling the infections. पिछले 10 सालों में आपने कितना इन्फेक्शन कंट्रोल किया है इंडियन हमारे क्लिनिक्स में, हमको सबको पता है कितना हम साफ सफाई रखते हैं. हाँ, हम रखते हैं साफ सफाई, लेकिन अब मैं एग्जांपल ही बताता हूँ. आप एक इम्प्रेशन लेते हो, इम्प्रेशन को आप वॉश करते हो पानी से, है ना. उसमें एक्चुअली उस चीज़ से वॉश नहीं करना चाहिए, उसको वॉशिंग करने का अलग सोल्यूशन आता है. वो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन क्या है हम यूज़ करते हैं? हम नहीं यूज़ करते हैं. हम हर सरफेस को, कंप्यूटर, कीबोर्ड और जो रैक्स है उसको हमको वैक्यूम करना चाहिए. और पहले जो हम लोग चीज़ नहीं करते थे वो अभी हमको रेगुलर करना है. तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ है वो जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपको यूज़ करना है. सबसे पहले आप जहाँ जहाँ पे आफ्टर यूजिंग ग्लव्स, जहाँ जहाँ पे हमारा हैंड टच हो रहा है किसी भी सरफेस पे, wherever our hand is getting touched, those areas we have to use reusable plastic, like we are using RVG sleeves. Those kind of plastic sleeves we need to use. For example, X-ray tube head, we need to cover it with a disposable plastic. Then every patient we should change the head cap, that headrest we are putting a head cap, right? Every patient we need to change it. I change it every time. Plus dental chair, the chair where the patient is sitting, it has to be wrapped in plastic. Then the patient, if the second patient comes, then again we have to change it for the second patient. So this is mandatory now, because a PPE kit or wo suction, high volume suction that will suck all the aerosols, all those things are very costly. You cannot buy now, and it will be out of stock now. Already out of stock है. PPE kit भी आपको नहीं मिलेगा इनिशियल में, बता रहा हूँ, पहले 2-3 महीने. So what basic things we need to do first? Whenever the patient is entering your clinic, you need to place one sanitizer over there, so that whenever the patient enters inside your room, he sanitizes the hand and uses his everything. Then if you're having a fridge in your clinic, you should remove it either, and you should keep only for personal use, not for patient use. Sometimes the fridges, I have seen fridges are kept outside in the waiting area so that patient can drink water and all. So वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके अपने रूम में रखना है. Then you need to wipe all your wirings, all your aerator के पास plug रहते हैं. Then आपका जितने भी आपका endomotor का wire रहता है. Then there is a wire of the apex locator. So all those wires need to be wiped with disinfectant very nicely. If you don't have disinfectant, you can use spirit. Instrument autoclave तो वगैरह है ही, files autoclave वगैरह तो है ही. But few things are there like mouth mirrors, and every surface should be cleaned all the time, and your regular attender cannot do it. You have to appoint a person who will only do cleaning in your clinic. तभी आप अपने क्लिनिक में काम कर पाओगे. तो मैंने क्या क्या बताया? You have to wrap the dental chair with plastic and remove it after every patient. You have to try to finish the work of the patient in one appointment only. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. मीन्स पेशेंट आया रूट कैनाल, तो you have to try to finish the root canal in one sitting only, because you are already spending so much money on the patient. You are using a PPE kit and you are using a plastic. Again the patient will come, again you will put a new PPE kit, again everything. So keep the appointments as minimum as possible. Keep 2 appointments in the evening, 2 in the morning. So one patient comes at 5 p.m, he leaves at 6:30. You finish the RCT, you finish the crown cutting, everything in one go, if it is indicated for single sitting RCT.
If the patient is not indicated, if the patient is indicated for some filling or that, you can finish easily, but only for RC cases I am telling. So this is a very important thing I am telling. Plus, wherever you are touching, like you are moving the headlight here and there, and that you are touching with your hand with your gloves, okay, that needs to be cleaned. Or if you don't have plastic, you can use aluminum foil, which is easily available. Then wherever you are keeping your air rotor, you need to have 3 to 4 air rotors, which needs to be autoclaved every time you are using. So you need to have 3 to 4 air rotors autoclaved ready when you are starting your clinic. एक autoclave यूज हो जाएगा, उसको आप अल्कोहल सोल्यूशन में थोड़ा डिप करके उसको डिसइंफेक्ट करके you can put it for autoclave for the second use. I have 3 to 4 air rotors in my clinic, and I was using them like this, but again I need to buy 2-3 more, and I have to do this. Means मैं आपको just मेरे दिमाग में जो आइडिया है मैं बता रहा हूँ. मैंने I have not seen any webinar till now or anything discussing about all these things. Only एक मैंने देखा था. तो ये सब मेरे आइडियाज जो बेसिक्स वो है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जितना भी एरोसोल्स है उसको सक्शन करने के लिए एक आ रहा है कॉन्फिडेंट का, 18th का आ रहा है, तो दोज आर वेरी कॉस्टली और अभी तक मिलेगा भी नहीं आपको. तो ये हो गया. देन वेन एवर द पेशेंट इज कमिंग, you request the patient on the phone to come alone, or if the patient is aged, you need to tell the patient not to bring any child or to bring any just to, if the old patient is there, you have to tell him to get only one attender. Or if the young patient is coming, you request the patient that the person whoever he is coming with or her, just drop the patient and then go, then again come back after half an hour, 1 hour, whatever it is. मतलब एक पेशेंट एक बार आएगा और उसके साथ कोई भी उसका अटेंडर आपके रूम के अंदर नहीं रहेगा. तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके रूम में अटेंडर 2-3 लोग आए, फिर उसका कोई, और काफ़ी बार क्लिनिक्स में ऐसा भी होता है कि एक आदमी पेशेंट आता है और पूछे सर मेरे पास एक पेशेंट है, मैं उनको लाऊं क्या? स्ट्रिक्टली मना कर दीजिएगा, बिना अपॉइंटमेंट के पेशेंट अभी मत करिए पिछले 2-3 महीने तक. अगर ऐसा करते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी. मतलब बाई चांस आपके क्लिनिक के थ्रू किसी को कोविड-19 हो जाता है, या फिर कोई भी कोविड-19 पेशेंट आपके क्लिनिक में आ जाता है, और कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि इस क्लिनिक से कोविड-19 का सोर्स है, तो आपका इमीडिएटली क्लिनिक शट डाउन हो जाएगा. जो कमाई हो रही थी वो बिल्कुल नहीं होगी. मतलब कम से कम 1 महीने के लिए तो शट डाउन होगा. प्लस न्यूज़ में आएगा, ये आएगा. मतलब इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. यू आर नोइंग. मतलब एक सिंगल पर्सन अगर किसी का कोविड-19 हो जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं सब कुछ, पुलिस तो इमीडिएटली पहुंच रही है. तो एक भी पेशेंट आपके वहाँ से आया तो ये लोग ट्रेस करते हैं कि पेशेंट कहाँ कहाँ गया था. देन आपके साथ जो भी फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपने जिस पेशेंट का किया उसकी फैमिली, उसकी रिलेटिव, सब क्वारंटाइन हो जाएंगे. तो बेसिकली बिल्कुल ध्यान से पेशेंट करना है. एंड वेन एवर द पेशेंट इज कमिंग टू योर क्लिनिक, आस्क द पेशेंट द हिस्ट्री ऑफ एनी फीवर और एनी काइंड ऑफ कफ, ड्राई कफ, जितने भी कोविड-19 के सिम्टम है आप पेशेंट से पूछिए. आस्क द पेशेंट फॉर एनी ट्रैवल हिस्ट्री. एंड जितना भी पेशेंट है, इफ यू सी द पेशेंट एंड बी वेरी स्पेसिफिक, डोंट ट्राई टू कन्विंस द पेशेंट फॉर मोर आरसीटी. पेशेंट को आप पूछिए आपको दांत निकालना है और यू वांट टू कीप द टूथ. ठीक है. पेशेंट इज सेइंग patient severe pain is there, I want to take out the tooth. Don't again convince for RCT. For the time being, extract the tooth. If the patient is willing to save the tooth, you tell him that this much money will be required and start the RCT and finish it off. Try to finish it on the same day. क्योंकि many patients are coming to the clinic. मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अरे चलो कुछ ना कुछ करा लेते हैं, दर्द कम हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे. So they'll pay you only peanuts. They'll pay you only 500 or 1000. And then what happens is you will be expecting the patient again, but the patient won't turn up. So your PPE kit is wasted, all your armamentarium is wasted. Patient pain एक बार RCT खोल दो, ओपन कर दो, तो वैसे ही पेन 3-4 साल के लिए चला जाता है या 2 साल के लिए चला जाता है. वैसे ही तो पेशेंट का 2 साल पेन नहीं होगा. तो आपका PPE किट बेकार जाएगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी. तो बेटर है अगर कोई पेशेंट बोल रहा है एक्सट्रैक्शन कर दीजिए, तो चुपचाप एक्सट्रैक्शन कर दीजिए उसको, और आपको कन्विंस करके आरसीटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट टेल द पेशेंट, बच सकता है. अगर इफ द पेशेंट से येस डू आरसीटी, इफ द पेशेंट सेज नो रिमूव. वेदर वो यंग पेशेंट है, बच्चा है, एडल्ट पेशेंट है, मोलर टूथ है, बच्चा है, देन फिर भी आप उसको निकालिए. बिकॉज यू हैव टू सी द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट टू. पेशेंट इज पुअर. पेशेंट, मेनी पेशेंट्स they have not worked since 2 months. They are already in less money.
देयर बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन नॉट जज कि कौन सा पेशेंट कितने पैसे लेके आया है, या फिर जस्ट डू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. पेशेंट आएगा, पेशेंट से पूछो. थोड़ा बहुत आपको पेशेंट ओरिएंटेड भी सोचना पड़ेगा. अभी इफ़ यू ट्राई टू कन्विंस मोर, योर टाइम विल बी वेस्टेड, पेशेंट्स टाइम विल ऑल्सो गेट वेस्टेड. तो अभी थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करना ज़रूरी है. नीटनेस एंड क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है क्लिनिक में. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे झाड़ू मारते रहेंगे. एक पेशेंट करेंगे, एक पेशेंट करने के बाद हाफ एन आवर ब्रेक देंगे. उस हाफ एन आवर में पेशेंट एप्रन, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके यूज़ हुए वो उसको अच्छे से अरेंज करके आप रखिए. पेशेंट आएगा, पहले से सारा सामान सेट करके रखिए, काम शुरू करिए. भले ही आपके पास पीपी किट नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डबल मास्क पहनना पड़ेगा. एंड यू नीड टू वेयर हेड कैप प्रॉपरली, गॉगल्स पहन के काम करिए. तो अगर आप खुद से बना सकते हैं, आपका जो मास्क होता है, मास्क के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा के आप कर सकते हैं. OHP शीट्स आती है मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है उससे विजिबिलिटी कम हो सकती है एंड आपको स्ट्रेन होगा काम करने में और घुटन जैसी होती है. तो वो सब भी चीज़ देखना है ना. ऐसे हम तो कोई बड़ी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं. वी आर वर्किंग इन स्मॉल एरिया, उसके अंदर भी स्मॉल एरिया. मतलब रूट कैनाल कर रहे हैं, मतलब एक टूट के अंदर होल है, उस होल के अंदर भी हम कैरीज को रिमूव कर रहे हैं, उसके अंदर कैनाल निकाल के. तो इतना सारा चीज़ है. आर्मामेंट्रम पहनेंगे, पीपी किट पहनेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर आपको पहनना ज़रूरी है. लेकिन जब तक नहीं मिले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करिए कुछ दिन. अब एक पीपी किट कितना दिन चल सकता है, उसको हम ऑटोक्लेव कर सकते नहीं, वो सब भी अभी तक मार्केट में क्लियर नहीं हुआ है. तो ये सब क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो अभी थोड़ा अपना प्रैक्टिस एक्सट्रैक्शन बेस्ड रखिए, नॉर्मल रेस्टोरेशन करिए. बस इतना वीडियो आज मुझे बताना था आप लोगों को. और क्लीननेस प्रोटोकॉल मेंटेन करिए. इंप्रेशन लेने के बाद अच्छे से वॉश करिए, सोप सोल्यूशन रखिए अपने पास, डिटर्जेंट रखिए, ये सब चीज़ें रखिए और नीट एंड क्लीन रखिए. तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड टेक केयर. इंस्टाग्राम में मुझे साई डेंटल व्लॉग्स में मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं. मेरा आईडी है sai_dental. और आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया मैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो गया सीरियस. बस हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइस. वेदर बहुत अच्छा हो गया आजकल, तो मुझे फील हो रहा है कि बस ऐसे ही चलता रहे. टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे एंड एंजॉय योर लाइफ.